کراچی کے علاقے صدر میں دھماکہ، ایک شخص جاں بحق 9 زخمی، 6 گاڑیوں اور کئی موٹر سائیکلوں کو نقصان۔ دھماکہ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ 2 کلو بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ ایک دھماکہ شیرین جناح کالونی، دوسرا ماڑی پور روڈ پر کیا گیا تھا۔ بام ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ۔ اپیرنٹلی یہ ڈیوائس پلانٹڈ تھی اور 11:20 پہ اٹ وینٹ آف۔ تو اس میں میں اب تک یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی پرٹیکولر وہیکل وہ ٹارگٹ تھا۔ اب جو اس وقت گاڑیاں یہاں سے گزر رہی تھیں، ظاہر ہے وہ ایک گاڑی نے زیادہ نقصان لیا ہے۔ دو سرکاری اہلکار زخمی ہیں جن کی یہ گاڑی تھی۔ دھماکے کے وقت کافی رش تھا، نہیں سمجھتا کسی فرد یا ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کراچی دھماکہ امن و امان خراب کرنے کی کوشش ہے، ڈی آئی جی ساؤتھ۔ جرنلائز تھریٹس جو ہے وہ مختلف اوقات میں آتے رہے ہیں۔ جرنلائز تھریٹ ہوتے ہیں جی کہ کراچی شہر میں کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اسپیسیفک کہ جی اس ایریا پہ ہو سکتا ہے، اس شخص پہ ہو سکتا ہے، یا ایگزیکٹلی کس گلی میں ہو سکتا ہے، اس طرح کا کوئی تھریٹ جو ہے سندھ پولیس کو یا ہوم ڈپارٹمنٹ کو کوئی موصول نہیں ہوا۔ ایک زخمی کی حالت تشویشناک۔ دھماکے کا ٹارگٹ کون تھا، ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا ٹاک۔ آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا، واقعے کی تفصیلات اگر شیئر کر لی گئیں تو ذمہ دار چوکنا ہو جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ جو بھی ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کرنے کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں کی جائیں گی۔ شہر نے بڑا برا وقت دیکھا ہے اور بڑی محنت کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد ہم اس برے وقت سے نکلے تھے اور اس شہر کے لوگوں نے ایک سکھ کا سانس لیا تھا۔ تو نیچرلی اتنا بڑا شہر ہے، اس کے اندر لوگ نظر لگا کے بیٹھتے ہیں کس طریقے سے اس کی امن و امان کی سچویشن کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی کراچی دھماکے کی مذمت، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت۔ عمران خان، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر صحت عبدالقادر پٹیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پسنجو اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ پچھلے کچھ دنوں میں کافی ایسے بیانات دیے گئے ہیں سینئر لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی طرف سے مختلف موقعوں پر، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ کافی عرصے سے ہم برداشت کا اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن۔ جو بھی سیاسی صورتحال ہے ملک کی، اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ایز این انسٹیٹیوشن۔ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ایوری ون، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ ہمارا میڈیا ہے، کہ فوج کو اس سیاسی گفتگو سے باہر رکھیں۔ سیاسی لیڈرشپ کے بیانات انتہائی نامناسب، کافی عرصے سے برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ ادارے کی لیڈرشپ کا فوکس اپنی ذمہ داریوں پر ہے، موجودہ سیاسی صورتحال میں کوئی عمل دخل نہیں۔ فوج کو الیکشن کرانے کی دعوت دینا بھی مناسب بات نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ آرمی چیف ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کا طریقہ کار اس کی تقرری کا طریقہ کار پاکستان کے آئین اور قانون میں بالکل وضع کر دیا گیا ہے، اور وقت آنے پر آئین اور قانون کے تحت ہی وہ اپوائنٹمنٹ اپنے وقت پہ ہو جائے گی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوج میں خدا نہ خواستہ کوئی ڈویژن ہو سکتی ہے، تو اس کو ہماری فوج کے ایتھوس، ہمارے فوج کے کلچر کا پتہ ہی نہیں۔ آرمی چیف بہت اہم عہدہ سپاہ سالار کی تقرری کا طریقہ کار آئین میں وضع کر دیا گیا ہے، تعیناتی آئین اور قانون کے تحت ہی ہوگی، بلا وجہ بحث معاملے کو متنازع بنانے کے مترادف ہے۔ پاک فوج مکمل طور پر متحد، تقسیم کی باتیں کرنے والے کو ادارے سے متعلق علم ہی نہیں، تنقید اور پروپیگنڈا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار۔ پشاور کور پاکستان آرمی کی ممتاز فارمیشن، قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی۔ کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ توقع ہے ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کیا جائے۔ آئی ایس پی آر۔
इन 3 सीजन्स ने मिलके, अमेरिकनों ने इनके साथ मिलके और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब ने मिलके प्लान किया और गवर्नमेंट गिरा दी। जब ये मुझे साजिश का पता चला, जो लोग साजिश रोक सकते थे मैंने उनको ये बताया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके कि ये जो अब आजादी की, हमारी हकीकी आजादी की जो हमारी तहरीक है, अपने खौफ खत्म कर दे। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम निकलेगी। जब मैं आपको कॉल दूंगा 20 तारीख के बाद, हम कभी इस्लामाबाद में जब तक ये इलेक्शन नहीं अनाउंस करेंगे, ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। 3 स्टोरेज ने बाइडेन इंतजामिया के साथ मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उनको आगाह किया, लेकिन अफसोस कुछ न कर सके। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। हकीकी आज़ादी का वक्त आ गया। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। जेल जाने को तैयार हूँ, जान की भी परवाह नहीं। खौफ की जंजीरें तोड़ कर निकलना होगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवाए बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं लौटेंगे। इमरान खान का अटक में खिताब। इमरान खान ने मुल्क को बचाने की कॉल दी है। तकरीरों का वक्त चला गया, तस्वीरों का वक्त चला गया। पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का सवाल है। आसिफ जरदारी कहता बाइडेन तो मेरा दोस्त है, मुझे उसने बताया ही नहीं कि मरासला भेज दिया है। और आज बिलावल मेरा दिल का जानी, आज वो कहता है धमकी दी गई कि मार्शल लॉ लगा देंगे। अमेरिकनों ने समझा था ये शू पॉलिश करने वाला हालात को संभाल लेगा। इमरान खान ने मुल्क बचाने की कॉल दे दी। तस्वीरों और रैलियों का वक्त गुजर चुका, अब जिंदगी और मौत का सवाल है। शेख रशीद का खिताब। शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ, इमरान खान आ रहा है। हुकूमत ने कंटेनर खड़े किए तो रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शाह महमूद कुरैशी की ललकार। केसेस नहीं, गंद सामने लाया जाएगा। केसेस तो बहुत छोटी चीज़ है, जो ये करके गए हैं 4.5 साल जो है वो कौम के साथ, वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल उनको आवाम के सामने इसने जो जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और हमारी सियासी रवायात का जो है इसने बैठाया है, ये कौम के नौजवानों को जो है वो उनको गुमराह कर रहा है। 3.5 साल गंद फैलाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। मुल्क को शदीद मुआशी दबाव का सामना है। PTI चेयरमैन पोलराइजेशन में मसरूफ। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। एहसन इकबाल। जो मुल्क को खारजी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हैं, इसी तरह जो मुल्क के अंदर पोलराइजेशन इमरान नियाज़ी साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के बारे में, बिलखसूस पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से जो एक मुनज़्ज़म मुहिम वो चलाकर मुल्क के अंदर एनार्की फैला रहे हैं और पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। नून लीगी क़यादत का लॉन्ग मार्च से सख्ती से निमटने का फैसला। इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म वतन वापसी पर मामला सामने रखेंगे। माशी बहाली के लिए तजावीज़ भी तैयार। ड्राफ्ट वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। लंदन इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। सारे सियासी जमातें अगले इलेक्शन से पहले अग्री नहीं होते हैं, तो फिर मैं इस हाउस के सामने क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा अगला इलेक्शन खूनी इलेक्शन होगा। इलेक्टोरल बिल्स, ऑर्डिनेंसेस एक्सेट्रा जो पिछले हुकूमत ने पास किए, हमारा इलेक्शन कमीशन का पर काटने की कोशिश कर रहे थे। जो RTS 2, RTS प्लस का EVMs के फॉर्म्स में मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हमें फौरी रिपील करना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद से पहले साबिक वजीर के जरिए फौरी इंतखाबात या मार्शल लॉ की धमकी दी गई। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर यकीन नहीं रखते। PTI ने 4 साल में हर शोबा तबाह कर दिया। हालात हमारे अंदाजे से ज़्यादा ख़राब निकले। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। किसी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक न हुआ तो अगला इलेक्शन खूनी होगा। PP चेयरमैन का असम्बली में इज़हार ख्याल।
इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में और इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। चोर इमरान खान है, चोर इमरान खान के इर्द गिर्द जितने वज़रा हैं वो हैं। अब वो उल्टे भी लटक जाएं तो उनका सियासी मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला ख़त्म है। मुल्क में आम इंतखाबात ही मसले का हल। मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। 4 साल की माशी तबाही 4 हफ्ते की हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। इमरान खान मुल्क को 400 साल पीछे ले गए। किसी खलंडरे को मैदान से ईवान तक पहुंचा दें तो तबाही ही होगी। शीन और मीम को अलग करने के ख्वाहिशमंद मायूस होंगे। मरियम नवाज। ख्वाजा आसिफ ने आम इंतखाबात से मुतालिक बयान बदल लिया। माशी इस्लाहात पहली तरजीह, इलेक्शन अगले मरहले में होंगे। आरिफ अलवी और उमर सरफराज चीमा ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान के अमरीका पर इल्ज़ामात कोई बयानिया नहीं। वज़ीर दिफा की लंदन में गुफ्तगू। पीटीआई हुकूमत साजिश के जरिए तब्दील की गई तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस खुद सरबराही करें। सदर ममलिकत का खत। मुल्क संगीन सियासी बहरान से दो चार। आवाम में बड़ी तफरीक भी पैदा हो रही है। पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें तमाम इदारों पर फ़र्ज़ हैं। खत का मतन। आरिफ अलवी से अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात। हमारा मुतालबा क्या था इदारों से, क्या फरीक मत बने। आज उनको मीर जाफर के लफ्ज से पुकारा जाता है कि जब तक उनका सहारा बने, वो मुल्क की किश्ती को गर्क करे तब भी सहारा बने, और जब सहारा बनते हैं तो फिर ठीक, फिर हमारी शिकायत भी ना जाए। मैंने कहा इसे कहते हैं तब्दीली। इलेक्शन पिछले लड़ा तब्दीली के नारे से और नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहता है आज़ादी के नारे से। तो आज़ादी के नारे में तो वो हमारी नक्काली कर रहा है, फिर नक्कालों से होशियार रहें। इदारे जब तक इनका सहारा बने तो सब ठीक, ना बने तो तनकीद। तब्दीली के नाम पर पिछला इलेक्शन लड़ने वाले अब आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। कौम नक्कालों से होशियार रहें। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में खिताब। फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है वो ऐसे नसर करते हैं जो मुल्क दुश्मन हो और मुल्की दफा को कमज़ोर करना चाहते हों। नून लीग जो है इमरान खान के बयानात को तोड़ मोड़ कर आर्मी चीफ के खिलाफ इस्तेमाल मत करें। कौम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का एजेंडा। इमरान खान के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। साजिशें करने वालों को नाकामी होगी। चौधरी परवेज़ इलाही। वज़ीर ख़ारिजा 17 मई को अमरीका रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो की हम मनसब। एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात 18 मई को शेड्यूल। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की वजाहत। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू के लिए मौसर मुहिम चलाने का ऐलान। पूरे सूबे में डेंगू टेस्ट 90 रुपये में होगा। तमाम मुतल्लिका महकमे और इदारे अलर्ट हो जाएं। रिजल्ट देना होंगे। इंसदाद डेंगू मुहिम में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। हमजा शहबाज की वार्निंग। कराची में पीपल्स पार्टी और एमकेएम रहनुमाओं की मुलाकात। पीपी वफ्द ने आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचा दिया। सिंध के मफाद के हर फैसले पर मुतहिदा के साथ हैं नासिर हुसैन शाह। कराची हैदराबाद समेत शहरी इलाकों की बेहतरी के लिए साथ बैठे हैं। एमकेएम रहनुमाओं की गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। क्रिश्चियन टर्नर ने काफिले की रहनुमा की खैरियत भी दरियाफ्त की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में जारी जंगी मशकों का जायजा। जवानों की पेशा वराना महारत और आज़म की तारीफ। सिपाह सालार ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी सराहा।
मुल्क की मईशत शदीद तरीन दबाव का शिकार, ज़र मुबादला के ज़खायर में 17 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी, 28 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। डॉलर की फिर ऊंची परवाज, रुपए के मुकाबले में कदर ₹1 75 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक मार्केट में ₹191.77 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। ओपन मार्केट में ₹192.50 में ट्रेड। सोने की फी तोला कीमत में ₹300 इजाफा। क्रिप्टो मार्केट क्रैश, सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। 24 घंटे के दौरान टेरालोनो की कीमत 98% गिर गई। और गैर एलानी लोड शेडिंग का आजाब, कराची वालों की जान ना छूट सकी। लाइंजेरिया, मली सिटी, रफी गार्डन, गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर, शहरी परेशान।